اگر وہ مجھے دیا ہوتا، اللہ نے میری قسمت میں ہوتا، اس دانے گندم کو میں کھا جاتا، کھا کے ہضم ہو گیا تو ختم تھا. لیکن اسی دانے گندم کو اگر میں زمین میں لگا دیتا تو اللہ ایک کے بدلے 70 دانہ دیتا. 70 کے بدلے جو 100 ہوتے جاتے، 100 کے بدلے 1000 ہوتے جاتے، 1000 کے بدلے لاکھ. کہتے ہیں اے موسیٰ، اس کو جو میں نے رزق دیا تھا، بڑا شاکر بندہ ہے میرا، اس نے جتنا کھانا تھا صبح سے لے کر شام تک کھایا اور خوب کھایا، دل کھول کے کھایا. اے موسیٰ کہتا ہے میں اتنا کروں گا کیا، اور یہ سب سڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا. اللہ نے سارا اٹھا کے مجھے دے دیا، میرا پیٹ تو بھر گیا. کہتے ایک مرتبہ اس نے دسترخوان بچھانا، اپنے سارے رشتہ دار کو، اعزاء و اقارب کو، تمام فقیر و فقراء کا، موسیٰ میں ہر چیز دینے کے بدلے 100 برابر دیا کرتا ہوں، 70 برابر دیا کرتا ہوں. اس نے ایک کو کھلایا، ایک کے بعد 70 بڑھتے چلے گئے. سلام بھیج محمد و آل محمد. موسیٰ اس نے مجھ سے معاملہ کیا تھا، اس کے رزق میں برکت ہوتی چلی گئی، یہ کھلاتا چلا گیا اور ہر کے برابر جو ہے اس میں بڑھتا چلا گیا. کہ آج اس کو اتنی نعمت ہو گئی کہ اگر یہ قیامت تک بھی خرچ کرے گا تو ختم نہیں ہونے والی. آج ہم گھبراتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آ جائے، کوئی ہمارے گھر کوئی رشتہ دار پہنچ جائے، گھبرا جاتے ہیں کیا کھلائیں گے، کیا لائیں گے. مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہماری زندگیوں میں دکھاوا بہت ہو گیا. اگر کسی کی ایک دعوت کرنا رہتی، جب تک 10 قسم کا کھانا نہ ہو تب تک دعوت نہیں ہوتی. اگر آپ نے مجھ کو مرغا کھلایا تو میں کم سے کم آپ کو پلاؤ کھلاؤں گا. آپ نے پلاؤ کھلاؤں گا تو آپ میرے آئیں گے تو میں لکھنؤ کا ٹنڈے کباب آپ کو کھلاؤں گا. آپ کو وہ کھلایا گیا، پتہ چلا کہ نہاری کلچے کھلائے جا رہے. نہیں، اگر ہماری زندگی سادہ ہو جائے، جو ہمارے پاس اللہ نے مثلا گھر پہ ہمارے مہمان کو آ گیا، جو پکا ہے اگر وہ دے دیا جائے تو اللہ بڑی نعمتوں میں برکتیں دے گا. اگر دکھاوے میں انسان آئے گا تو کہتے ہیں اسی طرح تجملات میں گھرتا چلا جائے گا. معصومین کے راستوں پر انسان چلے. مولا امیر بیٹھے ہوئے ہیں، امیر کائنات سے ایک شخص بھوکا ہوا آتا ہے. کہتے معصومین کی معرفت، خدا کی معرفت جب بڑھ جاتی ہے تو انسان کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں. کہتے امیر کائنات ہے کہ ایک کرائے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص بہت ہی بھوکا امیر کائنات سے کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، کئی دن سے میرے پاس کچھ نہیں. کہتے مولا کے پاس ایک سوکھی ہوئی روٹی تھی، مولا نے اٹھا کر دے دی. کہا لو میرے بھائی جو میرے پاس ہے، اس میں تو بھی کھا لے میں بھی. کہتے وہ گھٹنوں سے توڑتا ہے، روٹی نہیں ٹوٹتی. گھٹنوں سے توڑتا ہے، روٹی نہیں ٹوٹتی. اتنی خشک ہو چکی تھی. بہرحال اس نے وہاں سے کھایا. کھانے کے بعد مدینے میں اس کی انٹری ہوئی، مدینے میں داخل ہوا. پوچھا یہاں کوئی کریم خاندان کا ہے، یہاں کسی کا دسترخوان بچھا ہوتا ہے؟ کہاں وہ سامنے گھر نظر آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھا فقیروں کی لائن لگی ہوئی ہے. وہاں پہنچا، دسترخوان پہ نعمت فتح فراوان ہے. کہتے ایک مرتبہ یہ شخص کھاتا جاتا ہے اور تھوڑا سا کنارے چھپا کے رکھتا جاتا ہے، کھاتا جاتا ہے، چھپا کے رکھتا جاتا ہے. کہتے امام حسن کی نگاہ اس کے اوپر پڑ گئی. مولا نے پوچھا میرے بھائی تو دل بھر کر کھا لے، تو جتنا لے جانا چاہے گا میں تجھے دے دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہتے کس کے لیے لے جانا؟ کہتے کہ میں تو غریب ہوں لیکن ایک مجھ سے بھی زیادہ غریب مجھے ملا. اتنی سخت روٹی ہے کہ جو گھٹنوں سے نہیں ٹوٹتی، میں اس کے لیے لے کر جا رہا ہوں. کہتے امام حسن کی آنکھوں میں اشک آ گئے. کہتے میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں، میرے بابا علی مرتضیٰ ہیں، امیر کائنات، امیر کائنات. جناب مقداد ایک دن جناب مقداد آتے ہیں مولا امیر کی بارگاہ میں. کہتے یہ مولا، یہ امیر کائنات، میرے بچے چند روز سے بھوکے ہیں، آقا کچھ عنایت کر دیجیے. ماشاءاللہ. کہتے مولا امیر المومنین نے دروازے کے سامنے چند پتھر پڑے تھے. کہا یہ مقداد اس میں سے جو دل کرے اٹھا کر لیا. کہتے مقداد نے ایک پتھر کو اٹھایا. اٹھانے کے بعد مولا امیر کائنات فرماتے ہیں کہ اس پہ کہو یا علی مدد. کہتے مولا میں کہوں؟ کہاں؟ کہتے تم کہو یا علی مدد. کہتے مقداد نے ایک مرتبہ جیسے ہی لفظ علی کا لانا تھا، کہتے وہ پتھر سونے کے ٹکڑے میں تبدیل ہو گیا. مولا فرماتے ہیں مقداد جاؤ اور اس کو بیچ کر اپنے بچوں کے شکم کو سیر کرو.
कहते हैं बड़ा सा पत्थर है, सोने का टुकड़ा तब्दील हो चुका है, मिक़दाद के हाथों में है। जनाब मिक़दाद एक मर्तबा दरवाजे के इर्द गिर्द दोबारा अपनी निगाहों को घुमाने लगे, देखते हैं एक बड़ा सा पत्थर नजर आया। मिक़दाद ने उस पत्थर को उठाया और उसके बाद इस पत्थर को तोड़ना शुरू किया। जो सोने का टुकड़ा था इसको तोड़ना शुरू किया। इसको तोड़ते हैं, एक छोटा सा इतना सा एक मुन्ना सा टुकड़ा जनाब मिक़दाद ने लिया, बकिया उसको वहीं फेंक दिया। मौला कहते मिक़दाद क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें इनायत कर दी है, लेकर जाओ। कहते मौला आज के लिए इतना ही काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के लिए इतना ही काफी। मौला कहते ले जाओ, ये तुम्हारे लिए है, ये बाद में काम आएगा। अजीब तारीखी जुमला मिक़दाद ने कहा। कहते मौला वो शख्स उस वक्त सोचे जिसके पास आप जैसा अली ना हो। सुभान अल्लाह, बेशक। हे मौला जब आप मौजूद हैं तो मुझे कल की क्या फिक्र है। हमें भी सोचना चाहिए जब अली जैसा मेहरबान इमाम मौजूद है तो कब्र में मेरा मौला जब आ जाएगा तो हमें क्या परेशान। आज एक और अली की बारगाह में बैठे हैं, बहुत से लोगों की बहरहाल तक रुखसती भी है। बहरहाल मेरी भी आज आखिरी मजलिस है इस जगह पे। हर कोई बड़ी उम्मीद और बड़ी तमन्ना से इस बारगाह में आया है। इमाम रजा के पास आए हुए हैं, मौला से लेकर जाएंगे, कोई 1 हफ्ता कोई 10 दिन इस बारगाह में आया है इसी उम्मीद पर कि आका की बारगाह से कुछ न कुछ लेकर जाएंगे, खाली न जाएंगे। दुआ भी यही है मौला रजा आप भी अली हो, अली की औलाद हो, आपकी भी बारगाह से कोई वापस नहीं गया है। एक वाकया इसी में मैंने खत्म किया। एक किताब है जिसका नाम है करामात रज़विया, जो कि हरम की छपी हुई किताब है और मुख्तलिफ ज़बानों में इसका तर्जुमा किया गया है। करामात यानी मोजिज़ात, रज़विया यानी इमाम रज़ा के मोजिज़े। रुखसती के उन्वान से और अहमियत मासूम, मार्फत मासूम के ऊपर इस जुमले को यही से इल्तिमास दुआ आपसे, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर कहीं ना कहीं मुलाकात होगी माशाअल्लाह। कहते हैं एक काफिला था, मशहूर है इमाम रजा के यहाँ कि इमाम रजा के बारगाह में अगर कोई शिफा की जाली से किसी भी मरीज, किसी भी बीमार को अगर वहां पर ले जाकर अगर बांध दिया जाए माशाअल्लाह तो मौला उसे सेहत इनायत कर देते हैं। मैं कहता हूँ शिफा की जाली नहीं, फकत आका के सामने दिल से लाकर खड़ा कर दिया जाए। ये सब जगह देख रहे हैं, ये हर जगह हमारी फरियाद को सुन रहे हैं। ये जब हम अपने वतनों में रहते हैं वहां सुन लेते हैं, ये तो उनके सामने ही आकर खड़े। कल मैंने हदीस मौला रजा की पढ़ी थी, इज़ा नज़लत बिकुम शदाइद फस्तगीसू बिना, कि मौला रजा ने फरमाया था कि जब तुम मुश्किलों में घिर जाओ, जब तुम गिरफ्तारियों में घिर जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, तुम मुझसे इस्तिगासा तो करके देखो, तो मुझसे मांग कर तो देखो, मैं देखो कैसे तुम्हें देता हूँ। ये मौला आपने हर जगह के लिए कहा था। ये मेरी माँ और बहनें, मेरे भाई सब आपकी बारगाह में बैठे, सब हाजतें लेकर आए। किसी के साथ कोई ना कोई मुश्किल परेशानी है, किसी को औलाद चाहिए, कोई रिस्क की मुश्किल है, कोई अपने बच्चों की शादी ब्याह के लिए मुश्किल है, कोई मरीज है, कोई बीमार है। बहुत से लोग इस जगह पर आए हुए। ये मेरी माँ और बहनें, मेरे भाई सब आपकी बारगाह में दस्ते इल्तिजा फैलाए बैठे। आका दे दो हमें मौला, ज़हरा का सदका दे दो हमें, अपने फर्जंद इमाम जवाब का सदका दे दो हमें। कहते शहर इस्फहान में एक फैमिली रहती थी, बहुत गरीब, एक माँ उसकी एक जवान बेटी। कहते बेटी 10-12 साल की हुई, चलती फिरती बच्ची एक बार की अपाहज हो गई। खुदा किसी घर में ऐसी मरीज न थी, अपाहज हो गई। जवान बेटी है, कहते बेटी 18-20 साल की हो चुकी है, जवान लड़की। कहते माँ ने हर जगह दिखाया, हर हॉस्पिटल, हर डॉक्टर, जितनी उसकी बिसात थी, हर हकीम, हर वैद्य को ले जाकर दिखाया, लेकिन कोई फायदा न हुआ। बच्ची रोज बरोज बीमार होती चली गई। अल्लाह ने हुस्न दिया, शक्ल दी, सब कुछ दिया, लेकिन वो बिस्तर से उठ नहीं सकती। कहते माँ है, एक ही बेटी है और घर में कोई नहीं, बेवा माँ, एक निशानी। खुदा किसी घर में ऐसी नेमत और ऐसी रहमत न दे और ऐसी बीमारी किसी घर में ना हो। खुदा हर घर को हर बीमारियों से महफूज रखे। कहते माँ बहुत रोती है, बहुत गिरिया करती है।
बहुत क्रिया करती है, परेशान है। अब दुआ कर रही खुदा से यही, परवरदिगार मेरी बच्ची को मेरी जिंदगी में उठा ले, अगर मैं मर गई फिर मेरी बच्ची क्या करेगी? दुआ कर रही है। कह रहे मोहल्ले वाले आते थे, पड़ोसी आते थे, आकर उसको दिलासा देते थे। माँ है, सुनती थी, लेकिन फिर भी बर्दाश्त नहीं है। कहती है बहरहाल पता चला कि शहर इस्फहान से एक काफिला मौला इमाम रजा की जियारत के लिए जा रहा है। आप लोग भी जियारत के लिए आए हैं, बड़ी दूर दूर से आए हैं। इस आका ने बुलाया है, इस आका के मेहमान हैं। खुशकिस्मत है हम और आपके, हमारे मेजबान इमाम रजा। कहते हैं ये इससे आकर लोगों ने कहा कि काफिला जाने वाला है मशहद जियारत के लिए। तुम हर डॉक्टर को तो दिखा चुकी हो, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर मौजूद है, जाकर उसे एक मर्तबा दिखाओ। कहते माँ कहती है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो इतना नहीं कि अपना खर्च चला सकूं, मैं इस्फहान से मशहद कैसे जाऊंगी? कहते मोहल्ले के लोगों ने कहा कि इसे चंदा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, उसको यहाँ से रवाना करते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कहते लोगों ने पैसा जमा किया। पैसा जमा करने के बाद इस माँ और बेटी को यहाँ से रवाना किया। आप लोग भी आए होंगे, अक्सर देहातों में दस्तूर है, हमारे बर्रे सगीर का हिंद और पाक में, कि जब कोई जियारत के लिए जाता है लोग बड़ी दूर तक उसे छोड़ने जाते हैं, लोग बड़ी दूर तक उसे विदा कहने के लिए जाते हैं। बहुत से लोग गले में फूल पहनाते हैं, बहुत से लोग भरी हुई आंखों से कहते हैं तुम्हें मौला ने बुलाया है, हमें नहीं बुलाया है, तुम मौला के यहाँ जा रहे हो, हमारा भी सलाम उस गरीब को पहुंचा देना। खुशकिस्मत हो कि तुम्हें मौला ने बुलाया, हम नहीं जा रहे। वहां जा रहे हो, जाकर मौला को मेरा भी सलाम कह देना, आका को मेरा भी सलाम पहुंचा दे। कहते ये माँ आई इसी फलकया जिधर बाजार रजा है, यही का वाकया है, वहीं पे एक होटल था। ये काफिला आया, एक हफ्ते तक इमाम रजा की बारगाह में ये काफिला रुका। ये काफिला अब यहां से रुखसत होने वाला है। काफिला माँ ने रोज लाकर शिफा की जाली में अपनी बच्ची को बांधा। पूरा हफ्ता गुजर गया, लेकिन इसके जिस्म में जर्रा बराबर हरकत नहीं। कहते जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे थे, इसका दिल धड़कता चला जा रहा। कहते एक दिन वो भी आ गया कि रईस काफिला ने कहा चलो वेदा की जियारत पढ़ें और सब लोग वापस चलते हैं। कहते माँ तड़प गई, क्या जवाब दूंगी जाकर? जैसे लेके आए थे वैसे ही लेकर जा रही, जो हाजतें लेकर आए थे हम वैसे ही वापस जा रहे हैं, क्या जवाब देंगे वहां जाकर? कहते नकल करते हैं ये माँ अपनी बच्ची के साथ उस शिफा की जाली पर ला के बच्ची को लिटा देती है। ए मौला मैं बहुत ही गरीब, मौला आज हमारी रुखसती है। बहुत से लोग कल जाने वाले होंगे, परसों जाने वाले होंगे, मांग लो जो मांगना है मौला से। यहां से अगर खाली चले गए तो किसके पास जाकर मांगेंगे? मौला लोगों ने मुझे पैसा जमा करके आपके पास भेजा, अगर मैं ऐसे ही अपनी बच्ची को लेकर चली गई लोग मुझे ताने देंगे, मौला ने तेरी फरियाद न सुनी, मौला ने तेरी जियारत को कबूल न किया। ऐसे ही गई वैसे ही लेकर चली आई, रोती रही माँ, हिचकियां बंद गई माँ की। कुछ ना हुआ, कुछ ना हुआ, कुछ ना हुआ। कहते बच्ची को उठाकर लेके होटल में ले आए। अरे इसे काफिला ने कहा सब बस पर बैठ जाइए, बस सब चलने की तैयारी है। माँ थी, माँ का दिल था, खुदा किसी घर में ऐसा भी माँ हो, खुदा किसी माँ को ऐसे मजबूर ना करे। कहते एक मर्तबा इसने हाथों को जोड़ा,
रईस काफिला से कहती है, एक मर्तबा और मुझे इजाजत दे दो, मैं अपने मौला से खुदा हाफिजी कर लूं। रईस काफिला कहते देर हो रही है, बस तैयार है, सब जा चुके हैं, खाली तुम और तुम्हारी बेटी रह गई। क्यों देखो सामने बसती है, कहती हाथों को जोड़ती है, वास्ता देती इमाम रजा का, कहती मैं हरम में नहीं जाऊंगी, चौराहे से मौला का रोजा दिख रहा है, मैं यहीं से खुदा हाफिजी आखिरी खुदा हाफिजी मौला से कर लूं। अगर मुझे देर हो जाए मेरी बच्ची को बस पे सवार कर देना। कहते वहां से इजाजत लेकर खत्म किया मैंने, मांग ले मौला रजा से जो मांगना है। कहती है चौराहे पे आई, सामने मौला रजा का गुंबद नजर आ रहा था, हाथों को जोड़कर खड़ी हो गई। मां का दिल है, टूटी हुई आवाज में कहती है, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, ए गरीबों के इमाम आप पर हमारा सलाम, ए बेकसों के इमाम अस्सलामु अलैका या मुईन अज़्ज़ुअफ़ा वल फ़क़रा। कहती है आंसू लड़ियां बन चुकी थी, गिरिया कर रही है। कहते एक मर्तबा मौला से मुखातिब होके कहती आका रजा, जिस तरह से इस मां को बेआबरू किया है, किसी और मां को ऐसे बेआबरू न करना। ए मौला मैं यहां से जाकर क्या जवाब दूंगी जब लोग मुझसे मिलने के लिए मुझे ताने देंगी, औरतें मुझे बुरा भला लोग कहेंगे कि हम लोगों ने तुझे मशहद भेजा और वहां से खाली चली आई। कहती मां बहुत गिरिया करती है, खुदा हाफिजी करके एक मर्तबा मुड़ी, दिल था नहीं मानता, फिर मुड़ती है, रुख करती है मौला रजा की तरफ, एक अजीब जुमला कह देती है, मौला बेटी को लेके आई थी शिफा के लिए, मौला मैं तानों का जवाब न दे सकूंगी, मौला मेरी बेटी को उठा लो मौला, या सही कर दो, कैसे उठा लो कि जाकर कह दूंगी जब जिंदा ही न रही। कहते जाते जाते अजीब जुमला कह के चली गई है मां। कहती अगर आपने मेरी बच्ची को न देखा महशर में, मैं आपकी शिकायत आपकी दादी सहारा। खत्म किया एक जुमला, आखिरी फिक्रा। कहते आंसू पोंछते हुए होटल की तरफ रवाना। होटल नजदीक था, पहुंची, होटल के नजदीक पहुंचती है, देखिए बस सामने नजर नहीं आ रही है, बस में कोई नहीं। कहती लगता सवार मुझे छोड़कर चले गए क्या काफिले वाले मुझे छोड़कर चले गए। कहते एक मर्तबा ये मां अपने होटल की तरफ रवाना हुई। कहते जैसे जैसे अपने कमरे के नजदीक होती गई, क्या देखती है बाहर हुजूम लगा है, गिरियाजारी की आवाजें बुलंद, इसके कमरे के सामने भीड़ लगी हुई, घबरा गई। कहती लगता है मेरी बेटी दुनिया में नहीं रही। खुश होती है, खुश होती, कहती चलो अच्छा हुआ
کہ مر گئی، میں جا کر کہہ دوں گی جب زندہ ہی نہیں رہی تو میں کیا کرتی. کہتے دھڑکتے ہوئے